There is a tower whose height is 20 meters. Please write the question. There is a tower whose height is 20 meters. And a ball is projected horizontally from this tower at a speed of 5 meters per second. So there is a tower. This height is 20 meters. And a ball is projected horizontally at 5 meters per second. Find the time of flight. First question is find the time of flight. And the second question is what will be the range? Now range means what? What will be the distance of this object from the foot of the tower? Upon reaching the ground, what will be the distance from the foot of the tower? And वो कितनी देर हवा में रहेगा? Time of flight. Height है 20, फेंका गया उसको 5 से. So time 2 seconds and range 10. Yes, very good. Time 2 seconds and range is 10. Okay, Twinkle Bhavna. So yes. What's the right answer? Give me a thumbs up if this is okay. Yes, sir. So even if you want to do it in the other way, मान लो तुम्हें दूसरे तरीके से करना है. So what you can do is you can do S is equal to UT plus half AT square. So this S is how much? 20. यहाँ पे मैं plus 20 लिखूँ या minus 20? S क्या है इस केस में? So minus 20. Yes, very good. So S in this case is minus 20 because the object is falling down. क्योंकि object नीचे गिर रहा है, इसलिए मेरा S जो है वो minus 20 होगा. Right? So this object started from this point and it came to this point. So this is minus 20. So I will write minus 20. And now what is U in this case? 0. U is 0. U is 0 and this is minus 5 into t square. So my t comes out to be 2 seconds. Now my t is 2 seconds. अब मेरे को निकालना है. The next question was, B part was, what is the distance? What is the distance of this object from the foot of the tower? Distance of this object from the foot of the tower. इसको निकालने के लिए I will be using only the horizontal velocity. So horizontal velocity question में मेरे को कितनी दी गई थी? 5. So now this is a 9th class question. 5 into 2, which is equal to 10 meters. Yes. So I hope this should be okay. And next one is from the height of 35 meters. From the height of 35 meters, you can assume there is a tower 35 meter tall. From the height of 35 meters, a ball is projected horizontally at a speed of 60 meters per second. A ball is projected horizontally at a speed of 60 meters per second, 60, at an angle of 30 degrees. At an angle of 30 degrees. So the two questions are, question number 1, what will be the time of flight? Question number 2, what is the distance of this object upon reaching the ground from the foot of the tower? एक टावर है 35 मीटर का. एक टावर है 35 मीटर. And a ball is projected at a speed of 60. And this angle is 30 degrees. क्या कोई मेरे को अप्रोच बता सकता है थोड़ी सी, मतलब कैसे करेंगे इसको? So now to calculate this time, a simple equation which I'll use is S is equal to UT plus half AT square. So S in this case is what? यहाँ से लेके नीचे गिरेगा वो, that means this S is minus 35.
and u is what 60 से फेंका गया, so this speed is how much? 60 sine 30, that is 30. So this gives me 30 t minus 5 t square. So this gives me t square minus 60 minus 7 is equal to 0. T comes out to be 7 seconds. Now please unmute your microphones. देखना है इसको एक बार, इसमें कुछ था, मतलब क्यों नहीं हो रही भावना, मनन, क्यों नहीं हो रही? Okay, first of all, give me a thumbs up. ये समझ में आ गया? ये हमने 7 निकाला अभी अभी. Equation in 1D की मोशन लगाई है ना, very simple. S is equal to ut plus half at square लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया. So this was a 60 speed. 60 को मैंने 30 डिग्री पे फायर किया, तो मतलब this is 60 sin 30. That means 60 by 2, which is 30. And this horizontal speed जब उसको तुम कैलकुलेट करोगे, this is 30 root 3. Now s is equal to ut plus half at square. So this s, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है, this s is minus 35. This u is ऊपर जाते टाइम 30t minus 5t square. ये 5t कहाँ से आया? Half into minus 10. And उसके बाद तुम उसको 5 से काट दो, and your answer comes out to be 7 seconds. इसको मैंने अगर 30 से ऊपर फेंका है, यहां से if I throw this up with 30, तो इसकी जर्नी कैसी होगी? It will travel 25 and then 15 and then 5. 3 सेकंड में ये ऊपर जाके इसकी स्पीड बन जाएगी यहाँ पे 0, यहाँ पे स्पीड इसकी 0 हो जाएगी, and the distance traveled will be 25, 15, 5. फिर उसके बाद वो नीचे आएगा 5, 15, 25, then this 35. So this is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, 7 seconds. So my time of flight is 7 seconds. My range is equal to 30 root 3 into 7, which gives me 210 root 3. एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. ओके, जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है फ्रॉम द हाइट ऑफ, सो दिस इज अ टावर. इस टावर की हाइट कितनी है? 55 मीटर. 55 मीटर इसकी हाइट है. यहां से तुमने 100 की स्पीड पे 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया. फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट. किसी भी तरीके से कर दो. S is equal to ut plus half at square, whichever method, find the time of flight. Sir, 11 seconds. Yes, the time of flight is 11 seconds. Very good. Sir, 11 seconds. Sir, 11 seconds. Yes, 11 seconds. So if I apply S is equal to ut plus half a t square. So this S comes out to be minus 55 is equal to, u कितना आ जाएगा? 100 sin 30. That means 50t minus 5 t square. This gives me t square minus 10t minus 11 is equal to 0. T minus 11, t plus 1 equal to 0. So t comes out to be 11 seconds. This is one way. This is one way. The other way is, ये ऊपर जा रहा है at the speed of 50. ऊपर कितनी देर में पहुंच जाएगा? 5 सेकंड में. 5 सेकंड में पहुंचने में क्या जर्नी होगी इसकी? 45
35, 25, 15 and 5. These are the 5 seconds. फिर उसके बाद नीचे आते टाइम 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55. 55. So this is 5 seconds. This is 6 seconds. 5 plus 6 is equal to 11. Okay, this should be clear. Calculation थोड़ी सी slow है तुम लोग की, ठीक है? और calculation slow सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है. Okay, थोड़ी सी calculation slow है. These questions I am just reminding you once again. मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार बोला है. I am reminding this to you once again. अगर जब तुम्हारा IIT JEE का पेपर होगा या फिर जब तुम्हारा नीट का पेपर होगा तो उसके लिए तुम्हें टाइम दिया जाता है 3 hours एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 180. 60 क्वेश्चंस तुम्हारे फिजिक्स के होते हैं, 60 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, 60 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स या बायोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन 60 क्वेश्चंस बायोलॉजी के नीट के पेपर में, AIEEE के पेपर में डिपेंडिंग अपॉन लाइक व्हाटएवर द जो भी तुमने लिया है मेडिकल नॉन मेडिकल उसके हिसाब से 60 क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाएंगे और इसके लिए तुम्हें टाइम दिया जाएगा. सो बेसिकली to attempt one question you will get 60 seconds. So attempt one question, the time you are getting is 60 seconds. Now I want to remind you something which I have already told you once again. जब रिजल्ट आएगा ना, जब रिजल्ट आता है नीट का, तो जो फर्स्ट आता है बच्चा और जो सेकंड आता है, दोनों के जो मार्क्स होते हैं उनमें ना कुछ डिफरेंस होता है. लाइक इट्स नॉट, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 3-4 बच्चे फर्स्ट आ गए कि अभी उसमें से जो ना तुम रैंडमली निकाल रहे हो अल्फाबेटिकली या फिर कुछ और करके निकाल रहे हो. इन्होंने प्रोविजन बना रखा होता है, नीट वालों ने ऑलरेडी बना रखा है कि अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ गए तो रैंक कैसे डिसाइड होगा कि 2 के मार्क्स सेम आ गए. अब देखेंगे कि फिजिक्स में किसके ज्यादा है, फिर उसके बाद अगर वो भी सेम है फिर देखेंगे केमिस्ट्री के में किसके ज्यादा है. ऐसे कुछ उनका पूरा क्राइटेरिया है कि रैंक कैसे डिसाइड होगा अगर नंबर सेम आ गए. लेकिन यू विल ऑलवेज सी इन कंपटीशन एग्जामिनेशंस कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आया दोनों के मार्क्स सेम आ गए एंड नाउ अगले सब्जेक्ट की वजह से नाउ यू आर डिसाइडिंग द रैंक. बट आई एम टेलिंग यू दिस, ये जो 180 क्वेश्चंस हैं उसके लिए तुम 3 घंटे दे रहे हो, तुम वो टाइम बढ़ा दो, उसको 3 घंटे की बजाय ना दोनों को तुम 10-10 घंटे दे दो. उसे सुबह पेपर पकड़ा दो 10 बजे, उसको बोलो हम शाम को लेंगे तुमसे 6 बजे और ये 180 क्वेश्चन है तुम करो आराम से, 180 क्वेश्चन है तुम करो आराम से. आई एम टेलिंग यू, ओके, दिस इज, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आई कैन गारंटीली टेल यू दिस कि अगर मैंने 10 घंटे दे दिए फॉर 180 क्वेश्चंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, इस देश में हजारों बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे. ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके सेम मार्क्स आ जाएंगे, सेम लेवल पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस उनके करेक्ट होंगे. Okay, so what I want you to understand is it's not about solving the correct answer. Please try to understand this. मैं क्या बोल रहा हूँ? It is not about solving the correct answer. First of all, okay, first of all, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि अगर तुम्हें जस्ट पढ़ना होता, 11th 12th में तुम्हें पास होना है तो तुम्हारे स्कूल वाले भी करा देंगे. जिस भी स्कूल में तुमने एडमिशन लिया, डमी वमी लिया, तो वहां पे तुम रेगुलरली जाना स्टार्ट कर दो, तुम्हें 11th 12th में वो पास करा देंगे. ठीक है, तुम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाते हो, वहां पे जाके इतने पैसे क्यों देते हो? बिकॉज यू वांट टू क्लियर समथिंग एल्स. तुम्हें नीट क्लियर करना है या फिर तुम्हें AIEEE करना है या फिर तुम्हें IIT क्लियर करना है, राइट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज एंड IIT इज कि जब तुम IIT से निकलते हो तो तुम्हारा कुछ एवरेज पैकेज लगता है 25-30 लाख का. एवरेज पैकेज 25-30 लाख का मतलब ऑन अ मंथली बेसिस तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे. ठीक है, जो भी NITs होते हैं या IITs होते हैं, अगर उसमें तुम जाके अच्छी पढ़ाई करो तो ऑन एन एवरेज एट अ मिनिमम लेवल यू विल गेट अ पैकेज ऑफ 12 से 15, कम से कम तुम्हारे महीने में 1 लाख रुपए आया करेगा इफ यू क्लियर अ गुड IIT और NIT. द ओनली डिफरेंस, लेकिन वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT, अपना इतने ज्ञानी जैल सिंह भी है. ठीक है, पंजाब सिटी का पेपर क्लियर करके इथों कर लो इंजीनियरिंग.
only difference between an IIT and Gyani Jayal Singh is, first of all, if you take admission in this college, first of all, it is not guaranteed that you will get a job or not. And secondly, if you get a job from this college, then on a monthly basis, you will get rupees 20,000 or a maximum of 30,000 in your account. This is if you do engineering from any local college or any mid-level college, B-grade college. If you do engineering from a good NIT or an IIT, you will be getting at least a lakh rupees in your account on a daily basis. And now, what is the secret to clear all this IIT and NEET and AIEEE? The secret is not in solving the correct answer. I'm telling you this again and again and again. 10th तक क्या हो रहा था? The problem पता है क्या है? अभी एकदम से ना पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. 10th तक क्या हो रहा था? मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसके लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है. जब भी तुम अभी तक स्कूल के पेपर दे रहे हो, तुम्हें याद हो रहा होगा कि तुम पेपर करके बैठ गए हो. पेपर करके बैठ गए, अब तुम इधर उधर देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो. और उसको पेपर की चेकिंग कैसे होगी? या तो वो सही है या फिर वो गलत है. तो बीच में कोई टाइम का इश्यू तो आया ही नहीं. लेकिन AIEEE में ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा. जब तुम हॉल में बैठे होगे ना, वहां पे IIT JEE में पेपर दे रहोगे या फिर AIEEE का पेपर दे रहोगे, जब तुम्हारे 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, 180 मिनट्स, उस टाइम पे वहां पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इधर उधर देख रहा होगा. बिकॉज एवरीबडी विल बी अटेम्प्टिंग, everybody is short of time. I want you to understand this. When you give the examination of NEET or AIEEE, everybody is short of time. जो बच्चा फर्स्ट आएगा ना, जो बच्चा फर्स्ट आएगा जिसके 180 में से 176 नंबर है, जिसके 180 में से 176 नंबर है, the first guy जो फर्स्ट आ रहा है इंडिया में, even this guy is short of time. ये भी वो 4 क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि there was not enough time. इसलिए नहीं कि वो इसको आते नहीं थे. So I am reminding you this again and again and again that IIT, देखो अगर तुम्हें 11th 12th करनी है फिर सही है ये सब. अगर तुम्हें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तुम बढ़िया आराम से 5-6 मिनट लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. T11 सेकंड आ गया ना तुम्हारा, थोड़ी देर में आ ही गया था, सबका आ गया, सबका थम्स अप आ गया था, मतलब 11 सेकंड तो आ गया सबका. But now the problem is, तुमने अगर ऐसे नहीं किया इसको, अगर ये 11 सेकंड्स ऐसे नहीं आ रहा, तो फिर ये 11 सेकंड गलत है तुम्हारा. अगर तुम्हारा 11 सेकंड इस तरीके से आ रहा है, देन मेरे हिसाब से तुम्हारा 11 सेकंड गलत है. yeah? So I hope तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. Right? It's very important कि इस चीज की प्रैक्टिस तुम अभी से करना स्टार्ट कर दो. सेविंग टाइम, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली, इस चीज की प्रैक्टिस तुम अभी से करना स्टार्ट कर दो. क्योंकि अगर तुम इसको अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, देन ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अभी ना तुम जहां से भी पढ़ रहे हो ना, जो भी तुम्हें केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो भी अभी इतना रश नहीं कर रहे होंगे. उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि एकदम से यार नया नया बच्चा है, 10th करके आया है, एकदम से इसको हमने डरा दिया कि यार तुम्हें तेज करना है, तेज करना है, तेज करना है. तो ये बेचारा डिमोटिवेट ना हो जाए, ये भागना जाए यहाँ से. बट I think it's better to tell you the truth than to solace you with all the sugar-coated answers. Okay? तो मैं तुम्हें सीधा सीधा सच्चाई बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर IIT क्लियर करनी है, तुम्हें अगर NEET क्लियर करनी है, तो तुम्हें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा. Let me just tell you this one hard reality. IIT JEE का पेपर कितने लोग देते हैं हर साल? 15 लाख. IIT JEE का पेपर हर साल 15 लाख लोग देते हैं. Okay, I want you to listen to me very carefully. 15 lakh. Okay, if I have to write this in figures, this is 15,000,000. 15 लाख बच्चे देते हैं IIT JEE का पेपर. What are the number of seats? What are the number of seats in a good IIT? ये मैं रोपड़ वोपड़ को छोड़ रहा हूँ, ठीक है? IIT रोपड़ ये वो चुल्लू मुल्लू से उनको मैं छोड़ रहा हूँ. A good IIT, the number of seats is IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Lucknow, ये सारे मैं अच्छे IITs ले रहा हूँ. The number of seats are 5,000. The number of seats are 5,000. इस देश में 15 लाख बच्चे IIT का पेपर देंगे, उसमें से 5,000 बच्चों को एक बढ़िया सीट मिलेगी IIT में.
ये तुम कंपैरिजन बाकी कर लेना, ये आईआईटी के लिए और नीट के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। ओके, 15 लाख में से 5,000 बच्चों को अच्छी सीट मिलेगी। अगर मेरे को थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में तुम्हें पढ़ाई जाएगी, अगर मेरे को थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक बच्चा, मतलब कितने बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। सो इफ आई हैव टू डू दिस, हेलो, यस, हाँ जी, नीचे हो मेरे अपना यार 5-6। मेरी भाई क्लास चल रही है, थोड़ा नीचे आ गया। 17 नंबर, ठीक है। हाँ हाँ, 5 नंबर से सीधा आके ना आगे आके इतने 17 नंबर तक होगा तेन, ठीक है। बाहर गड्डी खड़ी है मेरी स्विफ्ट। ओके, जे ना पता लगे नंबर 3870, मैंने फोन कर ली भाई, ठीक है। मैं ऊपर इतनी क्लास चली आती मेरी। हाँ जी, 15 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चों में से 5,000 बच्चे हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। This gives me one. This gives me one for every 300 students. One of the guys will clear IIT JEE. हर 300 बच्चों में से एक बच्चा IIT JEE क्लियर कर रहा है। नाउ अगर तुम जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, अभी तो हम लोग 5 हैं, ठीक है, तो हम ये कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो मान लो तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां पे तुम्हारी क्लास में 300 बच्चे बैठे हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारी क्लास में तुम्हारे आसपास 300 बच्चे बैठे हैं, और उन 300 में अगर तुम फर्स्ट आ रहे हो, मतलब तुम, हो सकता है तुम्हारा एडमिशन आईआईटी में हो जाए। और उन 300 में से अगर तुम सेकंड आ रहे हो ना, तो तुम आईआईटी को भूल जाओ। और अगर उन 300 में से तुम थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ इस रैंक के लेवल पे आ रहे हो, फिर तो तुम आईआईटी को बिल्कुल ही भूल जाओ। So if there are 300 students in your class, if you want to go into a good IIT, you should be rank 1. I want you to understand this, okay? You should be rank 1 to go to a good IIT. जब भी तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, जहां पे भी जाके तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, आकाश में, फिरजी में, तो हर साल उसकी पेपर में, अखबारों में फोटो आती है कि देखो जी, टॉप 100 में हमारे 20 बच्चे, टॉप 10 में हमारे 2 बच्चे, है ना, कि हमारे 78 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन IIT JEE। वो 78 तो तुम्हें दिख जाते हैं, लेकिन उन 78 के पीछे देयर आर 78,000 स्टूडेंट्स जिनका आईआईटी में नहीं हुआ। उनकी फोटो कहीं पे नहीं आती। उन्होंने फॉर्म भरा था भाई, कहीं उनकी फोटो नहीं है, उन्होंने फॉर्म भरा था, उनके नंबर नहीं आए, अभी वो घर पे बैठे हैं और सोच रहे अभी मैं जिंदगी में क्या करूं। क्लियरिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट अ केक वॉक। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि अभी 11th स्टार्ट हुई है, आराम से करेंगे 11th 12th, फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इट डजंट वर्क लाइक दिस। 1/300। और मान लो तुम बोलो कि ठीक है मुझे आईआईटी में नहीं जाना, आई कैन गो इनटू अ गुड एनआईटी जलंधर चला जाऊंगा, या पैक में ले लूंगा, या फिर वीआईटी ले लूंगा, विलोर वोर, तो भी मतलब जो बढ़िया कॉलेज है ना, ए एंड बी ग्रेड कॉलेजेस, सो दिस विल गिव यू 10। तुम्हारी अगर 300 बच्चों की क्लास है, उसमें से जो टॉप 10 लोग हैं, दे विल गो टू अ गुड कॉलेज, जहां से निकलने के बाद उनका जो मंथली पैकेज होगा, दैट विल बी अराउंड 50-60,000। ये जो टॉप 10 बच्चे हैं, इनको जो मिनिमम पैकेज मिलेगा वो होगा 50-60-70 हजार रुपए इनको मिल जाएंगे महीने के बेस पे। लेकिन अगर तुम्हारी 300 बच्चों की क्लास है, उसमें टेस्ट हो रहा है और तुम्हारा रैंक वहां पे आ रहा है 15, 16, 20, 25, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि तुम्हें 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि तुम इंजीनियरिंग या मेडिकल तो नहीं कर पाओगे, और ये जो 2 साल इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करोगे वो अलग से वेस्ट होगी क्या। और द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन स्टार्टिंग नाउ। अभी तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू, अभी भी स्टार्ट हुआ है सब कुछ।
एक महीना हुआ है. If you start right away and you need incessant hard work for this. मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, incessant का मतलब देखना एक बार गूगल पे. What incessant means is you have to be consistent with your studies. ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने पढ़ लिया और मैंने 12-13 घंटे पढ़ लिया, अब मैं सोचूं कि ठीक है जी अब आराम से करेंगे. ठीक है, ये जो तुम्हारा 11 सेकंड है ना, this 11 second should come in less than 11 seconds. This answer to the time of flight 11 second, if you are getting this answer in less than 11 seconds, then you are on the right track. If you are getting this in 30, 40, 50 seconds, तो मेरे हिसाब से तो वो तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तुमसे, वो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन कुछ और ही पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक रेंज है, बीच में एक टावर है, वो किस एंगल पे गिर रही है. वो क्वेश्चन कुछ और ही होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो उस क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, वो बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट होगा, द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो दिस शुड कम इन 10-15 सेकेंड्स. फिर उसके बाद यू फिगर आउट हाउ टू डू द क्वेश्चन. ओके, आई होप थोड़ा सा पता लग गया होगा कि कंपटीशन अलग चीज है. ठीक है, 10th तक मेरी पढ़ाई अलग थी, कंपटीशन में पूरा जॉनर ही चेंज हो जाता है. नाउ इट्स ऑल अबाउट टाइम. सो इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका था फ्रॉम द हाइट ऑफ 55 मीटर्स. दिस वाज अ टावर. इसको मैंने फेंका था 55 मीटर की हाइट से at a speed of 100 at an angle of 30 degrees. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया. द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 11 seconds. नेक्स्ट थिंग इज मैं रेंज निकाल सकता हूं. रेंज इज व्हाट? टाइम इनटू horizontal velocity. Horizontal velocity is what? 50 root 3. So this gives me 550 root 3. Okay. Now next thing is, अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देख लेना. ठीक है, रिपीट देख लेना एक बार. Calculation is simple, time into velocity. Next thing is, the question is, ये फ्लाइट कुछ ऐसे जाके ऐसे होगी ना, ये ग्राउंड होगा, ये यहां पे आके गिरेगा. Now the question that I want to ask you is, when it falls on the ground, तब ये जो उसकी velocity होगी, this velocity when the object is just falling on the ground, तो ये जो इसकी velocity होगी, what will this velocity vector make an angle with the horizontal? Okay, let's say यहां पे गिरा हूं, तो ये जो velocity vector है, मतलब ये जो velocity vector है और ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल थीटा. अब सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी वेक्टर को नीचे ले आया. आई होप इसमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जब वो नीचे पहुंचेगा, वेलोसिटी वेक्टर ये था. ओके, लेकिन मेरे को एंगल निकालना है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ. तो सबसे पहले तो मैंने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया. ये वाली वेलोसिटी जो थी, इसको मैंने बोला कि दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, और इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द एक्स एक्सिस, सो दिस इज द एंगल थीटा. सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि जब वो नीचे गिर रहा होगा, what will be this angle made by the velocity vector with the horizontal? You have 4-5 minutes to do this. Please try this. Question समझ में आया? Give me a thumbs up. Question समझ में आया? Yeah. All the figures are same. Basically, when the object is falling down, what is the angle made by the velocity of this object with the horizontal? Please take 5 minutes.
प्लीज यू कैन आंसर में, जब भी किसी का आंसर आ जाए यू कैन आंसर मी. Yes, Bhavna, answer. Sir, 30. 30 degrees. Yes, sir. नहीं भावना, गलत है. एक बार जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना नीचे से, जब वो ग्राउंड से स्टार्ट होता है, तब हम निकालते हैं ना कि उसकी क्या एंगल है, थीटा क्या है. वो जैसे हम निकालते हैं उसी तरीके से निकाल लो इसको. Anybody else answers? ओके, ठीक है जी. एक बार देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार देख लो क्या हो रहा है. सर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी निकाल दिया मैंने. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 11 seconds. Now because this is 100, तो ये ऊपर वाली वेलोसिटी विल बी 100 एंड ये वाली वेलोसिटी, सॉरी, ऊपर वाली वेलोसिटी विल बी 50 एंड ये वाली वेलोसिटी विल बी 50√3 and this projectile will go and go like this. Let's say ये ground है, तो ये is the velocity vector, this velocity vector, and this angle is theta. तो फाइनल जब वो पहुंचेगा वहां पे, ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ओके लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये एंगल होगा थीटा, और ये वेलोसिटी वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. ये तो है हॉरिजॉन्टल और ये है उसका वर्टिकल. तो मतलब अगर मेरे को लास्ट मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता चल जाए, then I can find this angle which the velocity vector is making with the horizontal. Is this okay? Give me a thumbs up. Okay, या तो तुम मेरे को thumbs up दे सकते हो या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि सर ये कैसे बोल दिया आपने. ठीक है, so there are the thing is, ये रहा मेरा velocity vector, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. This is horizontal, this is vertical, और ये रहा एंगल. तो मतलब अगर मेरे को ये दोनों कंपोनेंट पता चल जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, फिर उसके बाद मैं क्या बोल दूंगा, ओके सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट Vy. सो tan theta in this triangle, tan theta is how much? Velocity of in y component upon velocity in x component. So that means my tan theta is equal to, what is the velocity in the y component? What is the velocity in y component when this object is falling down? नीचे गिरते टाइम velocity in y direction कितनी होगी? चलो ठीक है, y को छोड़ दो, x में बता दो, x डायरेक्शन में कितनी होगी velocity? 50√3. Okay, x axis में this velocity is 50√3. Now y direction में कितनी होगी velocity ये? 0. नीचे गिरते टाइम. ओके, y डायरेक्शन का एनालिसिस करते हैं. ऊपर फेंका मैंने 5 से, 50 की स्पीड से ऊपर फेंका तो ऊपर पहुंच जाएगा 5 सेकंड में. तो नाउ इसको यहां से फेंक रहा हूं मैं ऊपर 50 की स्पीड से. ओके, एट अ स्पीड ऑफ 50 आई एम थ्रोइंग दिस बॉल अप. तो 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी?
40, ओके, 1 सेकंड बाद 40, 2 सेकंड बाद स्पीड, 30, 30, 3 सेकंड बाद, 20, 20, 4 सेकंड बाद, 10, 10, 10, 5 सेकंड बाद, 0, 0, 5 सेकंड बाद 0, 6 सेकंड बाद -10, -10, 7 सेकंड बाद, -20, minus 20, 8 सेकंड बाद -30, 9 सेकंड बाद -40, 10 सेकंड बाद -50, 11 सेकंड बाद -60। यस, 50 से ऊपर फेंका था, 40, 30, 20, 10, 0, 5 सेकंड में होगी 0, 6 सेकंड बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब 11 सेकंड होते होते स्पीड हो जाएगी नीचे वाली 60, वेलोसिटी इज -60, स्पीड हो जाएगी 60, so this gives me 60, so my tan theta is 60/50√3, इसको तुम कैलकुलेट करके देख लेना जितना भी आ गया, so your theta comes out to be tan inverse 60/50√3. Please give me a thumbs up if this is okay. आया, समझ में आ गया ना? Right. Okay. A very similar question. मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर ये नहीं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो देख लेना, ठीक है? मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, देख लेना. So now the next question is a very similar question. थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बदल रहा हूँ. एक टावर है, उसकी कुछ हाइट है, उसकी कुछ हाइट है, वहां से मैंने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली एक बॉल को फेंक दिया एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टली एक बॉल को फेंक दिया एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. द क्वेश्चन इज, अच्छा तुम्हें एक और चीज बता रहा हूं, टावर की कुछ हाइट है, वहां से मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और ये जब नीचे आके गिरी ना बॉल, तो ये बॉल जब नीचे आके गिरी तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल के साथ. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर? ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लो दोबारा से. ये है एक टावर जिसकी हाइट है h, यहां से मैंने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. जब ये बॉल यहां पे नीचे आके गिरेगी, so the angle that this velocity vector was making with the horizontal, this angle was 45 degrees. The angle that the velocity vector was making with the horizontal was 45 degrees. इसको अगर मेरे को थोड़ा क्लियरली बनाना है तो, this is the velocity vector, this is the horizontal ground, this angle was 45 degrees. Question is, find the height of the tower. Sir, 80 meter. Sir, 80 meter. Yes, very good, Kashish and Manan. Very good. Everybody else, 2 मिनट ले लो और इसका मतलब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, सबसे पहले तो the first thing that I want, ओके, तुम बताना चाहता है कशिश? sir 80 meter, ओके, साइक बताएगा कैसे? sir बस tan theta में पुट कर दिया. सर मैं बताऊं, हाँ जी, यस मानन. सर साइन थीटा और कॉस थीटा एंड में सेम होंगे, और वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम होगी जब Yes. नीचे गिरेगी बॉल, क्योंकि 45 है. क्योंकि 45 डिग्री है, तो मतलब एंड में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा. अब ये मेरे को पता है 40 है, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इसका मतलब ये वर्टिकल वेलोसिटी भी नीचे जाते टाइम 40 होगी, मतलब पहले थी वर्टिकल वेलोसिटी 0, नीचे पहुंच के हो गई 40, मतलब 4 सेकंड में नीचे गिर रहा है. मतलब पहले गिरा 5, 15, 25, 35,
5, 15, 25, 35. If you add these, you'll get 80. किसी को कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है, आई थिंक सबका हो गया, सबने थम्स अप दे दिया था ना इसका? ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. राइट, मैं इसको मिटा रहा हूँ. आई होप दिस इज ओके. एक बार देख लो इसको. ओके, यू हैव 30 सेकेंड्स. चेक कर लो इसको, कुछ कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें? ओके, तो हमने क्या किया, बेसिकली उसको फेंका, किसी एंगल पे फेंका, और वो एक पर्टिकुलर एंगल पे नीचे गिर रहा था, तो मैंने हाइट निकाल ली. अब मैं सेम क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं. ऐसी एक टावर है, ऐसी एक टावर है, वहां से ना मैंने अब क्या किया, अब मैं टावर के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं. अब ना मैंने क्या किया, एक चौक को ना मैं ऐसे नीचे मारा. ओके, अभी तक क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हो रहा था. सो द एंगल वाज 0 डिग्रीज, थीटा वाज 0. या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर मारा था, ऊपर मारा था. अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस का जॉनर चेंज कर रहा हूं. मैंने एक बॉल को ऐसे नीचे मारा, बॉल को नीचे मारा एट अ स्पीड ऑफ, गिव मी अ स्पीड 30. और ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है. इसको ले लो तुम, 30 ले लो. दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्रीज. ओके, अब मैं टावर पे खड़ा हूं, मैंने नीचे पहले 30 डिग्री एंगल कैलकुलेट किया, ये 30 डिग्री बन रहा है. उस 30 डिग्री पे मैंने नीचे बॉल को फेंक के मारा. अब जो बॉल है वो ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी. तो ये जो डिस्टेंस था, so this distance is given to be 25.91, 25.9 ले लो. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 25.9. ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया. एक टावर था, उसके ऊपर मैं खड़ा हूं, मैंने नीचे बॉल को फेंक दिया 30 डिग्री के एंगल पे, 30 की स्पीड से, और वो कितनी दूर जाके गिरी बॉल? 25.9 मीटर दूर जाके गिरी. द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. So 45 meter. 45 meters. No. No. 1 second. No, Kashish. I think there is a calculation mistake. It should be. कितना बोला तुमने? 45, 35. 45. Yeah, I think there is a calculation mistake. मेरे हिसाब से the answer should be 35. Just check once. कुछ calculation की problem है. Yes, the answer is 35. 35. Yes, so 35. Okay, 35. Very good. Okay, anybody else? Bhavna, Manan, Saik, and Twinkle.
पहले तो टाइम निकालो, कितने टाइम में वो गिरेगा नीचे। सो कितने टाइम में गिरेगी ये बॉल नीचे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव मी द टाइम कि ये बॉल कितने टाइम में नीचे गिरेगी। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ एक बार देख लो इसको, ठीक है? थोड़ा सा टाइम कम रह रहा है हमारे पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं तुमको। 30 की स्पीड से फेंका गया नीचे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कशिश 35 इज इनकरेक्ट। ओके, 30 से मैंने उसको फेंका नीचे एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। अगर इस 30 के मेरे को कंपोनेंट्स करने हैं, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and this is the vertical component. This is the vertical component and this whole thing is 30. This angle is 30 degrees. तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है, this is 30 cos 30. This is 30 cos 30 which gives me 15 root 3. ये वाली जो साइड है, this is 30 sin 30 which gives me 15. तो ये दोनों चीजों को हटा के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से जो बॉल फेंकी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 15 रूट 3 और उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज 15। सबसे पहले तो अगर इतना एस्टैब्लिश हो गया देन गिव मी अ थम्स अप। इतना कैलकुलेट कर लो एक बार, ठीक है? अपनी नोटबुक्स में ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। जो 30 की स्पीड से मैंने फेंका एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी 15 रूट 3, vertical velocity is 15. Now horizontal velocity is 15 root 3 and the distance covered in the horizontal direction is 25.9. अब horizontal जो डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ है नहीं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 25.9, स्पीड इज दिस। तो मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं, ये 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो डिस्टेंस इज 25.9 इज इक्वल टू स्पीड इज 15 रूट 3 इनटू टाइम। Time comes out to be 25.9 over 15 root 3. एक बार इसका आंसर निकालना कितना है भाई? This is 15 root 3. (25.9 upon 15 root 3). 15 into root 3 करके देख लो, root 3 कितना होता है? 1.73. Okay, so 15 root 3, so 1 point, this is 1.73 multiplied by 15. So if I do this, 15 threes are, या फिर मैं बच्चों की तरह करता हूँ, 5 threes are 15, एक आ गया यहाँ पे, this is 36, 3 आ गया यहाँ पे, this gives me 8, multiply by 173. So this gives me 5, 9, 5, 2. 2 पॉइंट्स छोड़ के मेरे को डेसिमल लगाना पड़ेगा. So this gives me 25.9. 25.9. तो मतलब this is equal to 25.9
upon 25.9, which is equal to 1, which is equal to 1 seconds. Please give me a thumbs up if this much is okay. टाइम आ गया 1 सेकंड. अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं. टाइम मेरा आ गया 1 सेकंड. मतलब मुझे पता चल गया कि ये 1 सेकंड में नीचे पहुंच रहा है ऑब्जेक्ट यहां से. अब उसको नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मोशन इन 1D. तुमने किसी चीज को नीचे फेंका विद द स्पीड ऑफ 15. 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दैट विल बी द हाइट. So if I say S is equal to ut plus half g t square. S क्या है? मेरे को निकालना है. जो S का आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि यहां से नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट. So this S is equal to u is how much? 15. 15 किस तरफ है? नीचे की तरफ. So this gives me minus 15 into t. T is 1 minus 5 into 1 square. So this gives me minus 20. इसका मतलब displacement is यहाँ पे minus 20. That means the height of the tower is 20 meters.